آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، لعنت ہے ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر اور ان کی جگہ کو اپنی جگہ سمجھنے والوں پر۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ آج کی شب جمعہ، شب احیاء، شب آمد منجی بشریت میں کہوں تو یقیناً اعلیٰ ہوگا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اور امام حسین علیہ السلام، سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے سورہ کوثر کی دوسری تفسیر کی آمد آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ تمام انبیاء، تمام ملائکہ، تمام اولیاء، تمام اوصیاء کربلا معلیٰ میں ہوتے ہیں، اور آج کی شب تو ویسے ہی بہت خصوصی ہو گئی ہے۔ اس عنوان سے تمام معصومین علیہم السلام کربلا معلیٰ میں تو ہیں ہی، لیکن جس کو موقع مل سکا اور جس کی سعی مقبول ہو گئی وہ تو علی الظاہر کربلا معلیٰ میں موجود ہے، اور جن کی کوشش میں تھوڑی سی پرابلم ہو گئی، مشکل ہو گئی، وہ ظاہری طور پر تو کربلا میں نہیں لیکن ان کے دل کربلا معلیٰ میں ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں بار بار بے حد و بے حساب مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کی خدمت میں موجود ہیں، جس کی 33ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج 2 شعبان المعظم 1447 ہجری قمری ہے، 22 جنوری 2026 عیسوی ہے، اور ظاہری طور پر میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 33 آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ پروگرام ہے جو آپ کی محبتوں کا متقاضی ہے، اور آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آپ یہ پروگرام پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے لے کر 8 بج کے یعنی 10 بجے تک عراقی ٹائم کے مطابق 2 گھنٹے دورانی کا پروگرام لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے کربلا معلیٰ سے، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 12 بجے کے دوران، اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے کے دوران 2 گھنٹے دورانی کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور آپ سب کے لیے ہم بہت بہت دعا گو ہیں۔ خداوند متعال پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اور اس پروگرام کا تکرار جو ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کہہ لوں یا صبح کا وقت کہہ لوں، صبح کے 4 بجے اور شام کے 4 بجے، 2 ٹائم اس طریقے سے یاد رکھنا آسان رہے گا آپ کے لیے۔ صبح کے 4 بجے اور شام کے 4 بجے، اور درمیان میں جو وقت آتا ہے دوپہر کے 10:30 بجے لائیو براڈ کاسٹ ہونے کے بعد ان 3 ٹائمز میں پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح کے 4 بجے اور شام کے 4 بجے اور صبح کے وقت میں جو کہ ظہر سے پہلے کا وقت ہو جائے گا 10:30 بجے ری ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔
اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق ظاہری بات ہے آدھا گھنٹہ پاکستانی ٹائم سے زیادہ کر لیں گے تو اس میں صبح کے 4:30 بجے اور شام کے 4:30 بجے اور ظہر سے پہلے 11 بجے 3 مرتبہ یہ ری ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے یہ پروگرام، اور آپ کی خدمت میں ہم اس خدمت کو پیش کرتے ہیں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی رضا حاصل کر سکیں اور محبت اہل بیت علیہ السلام کو آپ کے گھر گھر پہنچایا جا سکے۔ بہرحال یہ سلسلہ عشق و محبت اہل بیت علیہ السلام ہم سب آپ کی خدمت میں لے کر روزانہ حاضر ہوتے ہیں۔ آمد امام حسین علیہ السلام کی شب، میں دوبارہ عرض کر دوں کہ پروگرام کا ٹائم عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر 12 بجے، انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے کے دوران۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ سید محمد شمائل حسین صاحب راولپنڈی سے موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد، یا علی مدد، پیر مولا علی مدد۔ بہت تبریک پیش کرتا ہوں آغا، ماشاءاللہ 3 شعبان شب جمعہ بین الحرمین، تمام امت مسلمہ کو، تمام حسینیوں کو تبریک پیش کرتا ہوں۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں ولادت امام حسین کی تبریک پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک ہو آپ کو، ہم بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں مولا کی آمد کی۔ شب ظہور امام حسین علیہ السلام آپ کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جس پروگرام میں کال کی ہے، اس پروگرام کا ٹائم عراقی ٹائم 8 بجے اور پاکستانی ٹائم رات 10 بجے سے 12 بجے کے دوران 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو ہم اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اس کا نام 14,000 سپانسر ہے، اور اس کے نام سے ہی آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہے کہ 14,000 سپانسر کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو گھر گھر پہنچائیں۔ جس طریقے سے آپ کا دل ٹھنڈا ہوا مولا کی آمد کی تبریک پیش کر کے کربلائے معلیٰ میں، اور مومنین بھی جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا وہاں پر بھی پہنچے، اس عنوان سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پروگرام کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسر ہو جائیں۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسر بنیں؟ جناب سید شمائل صاحب، شمائل صاحب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ مولا قبول فرمائیں، سلامت رہیں۔ بہرحال نیٹ کی پرابلمز مومنین کے ساتھ پیش آتی رہتی ہے اور یہ کیفیت چلتی رہتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق ہم نے آپ کو عرض کیا کہ 10 بجے سے 12 بجے اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 سے 12:30 کے دوران، اور نیو یارک کے ٹائم کے مطابق رات کے 12 بجے سے لے کر 2 بجے کے دوران، اور لندن کے ٹائم کے مطابق شام 5 بجے سے لے کر 7 بجے کے دوران یہ 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور آپ سب کے لیے ہم دعا گو ہیں جلد کربلائے معلیٰ آنے کا شرف آپ سب کو بھی حاصل ہو۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہمارا اہل بیت علیہ السلام کی مودت کو گھر گھر پہنچانا ہے، اور آج کی شب میں تو کوئی چاہے نہ چاہے محبت امام حسین علیہ السلام نے ہر گھر میں چراغاں کیا ہوا ہے، اور ہر دل اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مولا کی آمد سے خوش و خرم ہے، شاد ہے۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے نظارے آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وطن وطن، دیار دیار سے، ملک ملک سے، شہر شہر سے لوگ شب جمعہ، ایک تو مناسبت شب جمعہ اور دوسری آمد امام حسین علیہ السلام، ان دونوں مناسبتوں کو یکجا کر کے مومنین کربلائے معلیٰ میں آئے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ مومنین کے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے، اور ہم نے بھی آپ کی خدمت کے اندر دیکھیے کیک کو سجایا ہے امام حسین علیہ السلام کی آمد کی مناسبت۔ معصومہ صاحبہ حیدرآباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔
محترمہ معصومہ صاحبہ آپ میری آواز سماعت فرما رہی ہیں؟ جی ہلو. محترمہ آپ کی کال لائیو پروگرام میں آن ایئر ہے، آپ میری آواز سماعت فرما رہی ہیں؟ جی جی ہاں، یہ تھوڑا سا کوشش کیجیے شور شرابے سے دور ہو جائیے. السلام علیکم. جی 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 چپ ہو جاؤ، شور شرابہ نہ کرو. السلام علیکم. صلی اللہ محمد وعلی محمد. مولا کی آمد کی آپ کو السلام بہت بہت علیکم مبارکبادی پیش کرتے ہیں. جی جی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. السلام علیکم ابا عبداللہ حسین. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم امیر المومنین. السلام علیکم ابن سید الرسول. السلام علیکم فاطمہ زہرا سید النساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسین سید صابرین راضی کے واسطے راضی کے صدقے میں ہم پریشان مشکلاتوں کا تکلیف ہے. مولا حسین کو راضی ولادت کے واسطے نواز عباس کو نام حسین ولادت کے واسطے ہم پریشان تکلیف مشکلات دور کر بچے سے جان سے پورے سجن سے پورے مشور سے پورے نام نام سے زندگی دے دنیا اللہ الہی مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، جلد کربلائے مولا آنے کا شرف حاصل ہو. مولا آپ کو جلد کربلائے مولا آنے کی توفیق عطا فرمائیں. بی بی آپ پہلے سے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی سپانسر ہیں؟ مولا رضا جی ساہیا مشہد میں جنت بنائیا دیکھا خالق جنت بنائیا یا مولا رضا جی ساہیا مشہد میں جنت بنائیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. بی بی میری آواز سن رہی ہیں آپ کیا؟ محترمہ معصومہ صاحبہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معصومہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی جی ہاں تو پھر بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے. جس پروگرام میں آپ نے کال کی ہے نا، یہ لائیو پروگرام ہے اور اس میں امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے حصے دار بنیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آپ ڈونیٹر بنیں. تو کیا آپ چاہیں گی کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی اسپانسر بنیں؟ کربلا میں فون گیا ہوں. بہرحال مومنین بات کو شاید ان کو میری بات بھی سمجھ نہیں آئی ہے. بہرحال جی بہرحال مومنین کی خواہشیں مولا کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہیں اور چاہتے ہیں مولا کی بارگاہ میں مبارکبادی پیش کریں. اور مومنین جو کال کرتے ہیں، کافی سارے ایسے مومنین ہیں جو ہماری زبان کو نہیں سمجھتے اور لیکن ان کا یہ ہے کہ وہ مولا کی بارگاہ میں توسل کے لیے اس پروگرام کو اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو سب کی خدمت کے اندر عرض یہی ہے. السلام علیکم. آپ کی آواز اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی جناب عامر علی صاحب. ہاں جناب. بہرحال مولا کی بارگاہ کے اندر ہم آپ کے لیے موجود ہیں. مومنین کو ہماری زبان سمجھ نہیں آتی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز کربلائے مولا تک پہنچے. تو جی جناب عامر علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. مولانا کیا حال ہے؟ کرم مولا کا احسان. مولا کی آمد کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. سلامت رہیں. مولا قبول فرمائیں. آپ کی کال امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے ہر مومن اس کا سپانسر ہو جائے اور آپ پہلے سے ہی ماشاءاللہ سپانسر ہیں. آپ کس شہر سے ہیں؟ جی
अपने शहर का नाम मैं बताएंगे? नवाब शाह सिंध से पाकिस्तान। नवाब शाह सिंध पाकिस्तान से। मौला कबूल फरमाएं और हमेशा सलामत रहें। हमारी ख्वाहिश होगी कि जिस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं ना, ये और 14 मोमिनीन को भी शेयर फरमाएं ताकि वो भी प्रोग्राम में कॉल कर सकें और मौला को सलाम पेश कर सकें। अब आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं, सीने पर हाथ रख के, सर झुका के मौला को सलाम भी पेश करें, मुबारकबादी भी पेश करें। बिस्मिल्लाह। हाँ, ये मैं 1 महीना पहले मैंने शेयर कर दिए 14 मोमिनीन को। माशाल्लाह। अब आप और सलाम पेश करें मौला हिदिया की भी बात। पेश कर दिया है आपको, तकरीबन 1000 रुपया। करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं और सलाम पेश करें आप। मौला की बारगाह में सलाम पेश करते हैं और पंचन पाक 14 मासूम की बारगाह में मौला की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। खैर ज़ियारत आशूरा का हदिया मौला की बारगाह में पेश करते हैं। मौला बाबुल हज मौला गाजीबाद की बारगाह में और मौला मासूम अली असगर बाबुल हज से हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह बाबुल हज, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बाबुल हज, सैयदा उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम, सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम बाबुल हज, मौला मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम हमें जल्द से जल्द रोजगार अता करें, नरीना बेटे की औलाद अता करें। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, इलाही आमीन, शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम के सदक़े में इलाही आमीन, जल्द से जल्द रोजगार अता करे, बेटा इलाही अता करे आमीन, और इलाही जल्द आमीन। से जल्द करबला की ज़ियारत नसीब करे। मौला कबूल फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। सलामत रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। जब जी चाहे आप मौला की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। आपके शिरकत करने का शुक्रिया। मौला की आमद पे मौला की बारगाह में आपका सलाम पहुंचा। मौला आपको ख़ुद को भी जल्द आने की तौफीक अता फरमाए। सदा सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। शब आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, करबला मौला, बेहतरीन अंदाज में सजी हुई करबला, मोमिनीन का जमे गफ़ीर करबला मौला में मौला की बारगाह में अपनी मोहब्बतों को, अक़ीदतों को और अपनी हुस्न मवद्दत को मौला की बारगाह में पेश करने के लिए हाजिर हुआ है। आज की शब मौला हम सब को अपना कुर्ब व जवार अता फरमा रहे हैं और इस कुर्ब व जवार में हमारे लिए रहमतें हैं, बरकतें हैं, नजातें हैं और इसमें हमारे लिए शिफाअतें हैं। गुलबारान मौला की बारगाह में हम करते भी हैं और ये हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। माह शाबान आ गया आयात रब्बानी लिए, माह शाबान आ गया आयात रब्बानी लिए। जी उम्मुल बनीन साहिबा हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली मदद। मौला की आमद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई। सलामत रहें बहन। आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में है और इस वक्त मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है। आप पहले से स्पॉन्सर हो चुकी हैं क्या? जी हाँ, मेरे बच्चे बात करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, आपके बच्चे बात करते हैं और आप स्पॉन्सर हो चुकी हैं। मौला कबूल फरमाएं। करबला मोहल्ला में इस वक्त आपकी आवाज़ है और मेरी ख्वाहिश होगी ये व्हाट्सएप नंबर 14 मोमिनीन को और भी शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी मौला की बारगाह में कॉल कर सकें और सलाम पेश कर सकें। अब आप करबला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सर झुकाकर सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी हाँ। अस्सलामु अलैकुम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मौला हुसैन ने तो सही मुश्किल तकलीफ परेशानी हुआ। अस्सलामु अलैकुम या अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम। मौला गाजी मौला हुसैन से मुश्किल तकलीफ परेशानी लाए मेरे बच्चन के पनाह मौला मौला मुझे वार से पनाह दे, मुझे माँ के मेरे भाई बहन भी मेरे मुस्लिम बच्चन की मुश्किल तकलीफ और बहाना का बच्चन मौला मुझे तंदुरुस्ती दे। मौला ये परेशान वाली पढ़ी दो। बिस्मिल्लाह। हाँ अच्छा मैं लाही आमीन। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का।
मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी खिदमत में रहेंगे और जब मौला से तवस्सुल करना चाहें इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। सदा सलामत रहे, मौला खुश रखें आपको। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी सारी अहादीस मौजूद हैं और इन अहादीस में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाया। और इसी तरीके से कुरान मजीद में भी काफ़ी सारी ऐसी आयात हैं जिनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी हसन फातिमा साहिबा कराची पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे मौला हुसैन को सलाम पेश करना है। या अली मदद। जी हेलो जी, आपको या मेरी आवाज़ आ रही है? मौला की आमद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ मैं खुसूसी तौर पे जनाब हेलो जी जी, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा कट आ गया था। बहरहाल मौला आपको भी जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाएं और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहें। इस वक्त आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मौजूद है और इस प्रोग्राम का मकसद ये है मोमिनीन मौला की बारगाह में एक तो तवस्सुल भी करें, दूसरा ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप ज़ाहिरी बात है आप लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल करता है और आपके लिए ज़ियारत का सबब है और तवस्सुल का सबब है। तो चाहते हैं कि ये पैगाम घर घर पहुँचे और हर मोमिन इसमें शरीक हो सके। तो इस मकसद के लिए चाहते हैं कि आप भी मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर हो जाएं ताकि ये चिराग हमेशा जलता रहे और मोमिनीन के घर घर ये पैगाम पहुंचता रहे। तो क्या आप चाहेंगी कि आप हस्ब तौफीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की स्पॉन्सर हो जाएं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मैं तो मुहम्मद तहे दिल व से आल आप लोगों की ममनून और मशकूर हूँ कि आपकी के ममनून और मशकूर हूँ कि परवरदिगार ने मौला हुसैन से बात कर लेते हैं, सलाम कर लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे मौला की जरी के पास खड़े हुए हैं। इतना अच्छा रिस्पांस करते हैं आप। सलामत रहें, मौला खुश रखे। हम ये भी चाहते हैं कि जो आपने स्पॉन्सरशिप का ऐलान किया है इसे किसी मासूम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा सवाब हासिल हो सके। अच्छा, मैं तो अपने वक्त के इमाम ज़माना के नाम मंसूब करूंगी कि मेरे वक्त के इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर हो जाए। मौला मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं मतलब मेरी कभी बात भी नहीं हुई थी ना, और बस मेरी दुआ यही है कि मौला मुझे, और जो है आज का तो बहुत खुशी का दिन है, तो मैं 14 मासूमीन को जो है वो जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह को सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ, खुसूसी तौर पे वक्त के इमाम को और आपकी पूरी टीम को जो है मैं दुआ करूंगी कि मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। आप हमारी बात करवा देते हैं। मौला आपको सलामत रखे। ये 14 मोमिनीन को और भी ये नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि वो इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकें। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में मौजूद है। करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए और दिल पर हाथ रख के नज़रों को झुका के बीबी की आमद है करबला में। आज तमाम अंबिया औसिया औलिया शब जुम्मा करबला में होते हैं। शब आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी है, शब जुम्मा भी है। मौला को सलाम पेश कीजिए और मोमिनीन को साथ में शरीक फरमाइए। बिस्मिल्लाह। जी जी। अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम गरीबल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम शम्स शमूस, अस्सलाम वालेकुम अनीस नफुस अय्युल मुस्लिमीन बेअज़तुस, अस्सलाम वालेकुम साहिबुल अस्र वल ज़मान अलमान मिन फिद्दतिज़ ज़मान, अस्सलाम वालेकुम खलीफतुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम शरीकुल कुरान, अस्सलाम वालेकुम इमामुल इंस वल जान जल्लल्लाहु ताला फरजक व सल्लल्लाहु मखरजक व ज़हूरक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला हुसैन मैं आपको सलाम पेश किया मौला, और मैं को जो है वो मुबारकबाद पेश करूंगी 14 मासूमीन को और तमाम मोमिनीन मोमिनात को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद हैं। खुसूस तौर पे आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगी। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह की विलादत बासआदत के मौके पर सबको मैं मुबारकबाद पेश करूंगी कि कितनी बड़ी खुशी है ये हमारे यहाँ। सबसे बड़ी अहले बैत की अतार की खुशी है ये हमारे लिए,
اور ہمارے لیے تو ہماری عید سب سے بڑی عید ہے یہ شعبان تو ہمارے لیے وہ مہینہ ہے کہ بس اس میں ماشاء اللہ سے ولادتیں ہی ولادتیں ہیں بس. ماشاءاللہ مولا آپ کی حسن عقیدت کو روز افزون زیادہ فرمائیں اور آپ کو بھی جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں. الہی آمین ڈھیر الہی ساری آمین. خوشیاں نصیب آپ میرا فرمائیں. نام لے کے دعا کریے گا مولا کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے جلد سے جلد بلا لے کربلا. میری بہت خواہش ہے میرے آپ کی بچوں کو, آواز مجھے, میرے شوہر کو, ہم سب کو آپ کی کربلا بلائے, آواز میرے مولا بہن کی بھائیوں بارگاہ کو میں ہے. جو سب کو بھی بلا لے. دل اور جو میری شکستہ والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کا پہلا سال ہے تو ان کی بھی, میرے والدین کی مغفرت فرمائے. بس دعاؤں میں الہی یاد رکھیے گا. الہی آمین. پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے, سلامت رہیں آپ لوگ مولا سب, آپ کو بھی خوش سلامت رہیں. رکھے. آپ نے کال کی ہے اور آپ خود بات کر رہی ہیں مولا کی بارگاہ میں, آپ کی آواز پہنچ رہی ہے, جی جی آپ کا بالکل. توسل پہنچ رہا ہے. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں, آپ کی طرف سے نائب زیارت ہیں. آپ نے خود جزاک بھی اللہ مولا کی جزاک اللہ. بارگاہ میں شرکت فرمائی ہے. جو دل ٹوٹا مولا کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ شریک ہے اور وہ دیکھ رہا ہے, اس نے آپ کی آواز سنی ہے. یقیناً جو زیارت پر نہیں آیا اس کی بھی آپ نے ایک طرح سے پیغام رسانی کی ہے, تو وہ سب بھی آپ کے ساتھ یقیناً اپنے لیے مانگ رہے ہوں گے, آپ کے لیے بھی مانگیں گے اور ہم بھی مانگیں گے مولا سے کہ مولا آپ کو جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائے اور الہی آپ کو آمین بار بار الہی آمین کربلائے مولا آنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی بال آمین بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور شر شیطان و الہی اعداء آمین سے مولا آپ کو محفوظ فرمائے. آپ کی دل کی آواز الہی آمین یقیناً مولا کی بارگاہ میں, اور مولا خود رحمت فرمانے والے ہیں, مولا خود کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. اور وہ کریم ہے, اپنے انشاءاللہ انشاءاللہ. بندوں سے غافل نہیں ہے. کریم یقیناً ابن آپ پر کریم ہے. مولا آپ کو جزائے, مولا مولا آپ کو جزائے خیر عطا کرائے. مولا آپ شاد آباد رہیں, آپ کی پوری ٹیم سلامت رہے, سلامت رہیں آپ لوگ, اور ہماری اسی طرح بات کرواتے رہے. الہی دعاؤں میں آمین. یاد رکھیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے, آباد سلامت رہے, رہے مولا خوش سلامت رکھے رہے. آپ کو, سدا اللہ حافظ. سلامت رہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. نیکسٹ بھی کال کے آپ کے منتظر رہیں گے. سلامت رہیں, اور مومنین کو بھی نمبر شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں. سلامت رہیں, آباد رہیں. مومنین کی محبت مولا کی بارگاہ میں یقیناً دیکھیں, جب انسان دل سے بات کرتا ہے تو دل میں داخل ہوتی ہے بات, اور مومنین خلوص سے مولا کی بارگاہ میں آنے کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی یہ دعائیں مولا کی بارگاہ میں مقبول ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی آواز مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ کر کے پیش کریں. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں. دلوں کی دھڑکنیں مولا کے نام ہے, ہم سب کی ہر چیز مولا کے نام ہے, اور ہم ہر چیز مولا کے نام کرنے کو ہی اپنے لیے عبادت اور شرافت سمجھتے ہیں. تو ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ کرے ہمیشہ کربلائے مولا آپ بھی آتے رہیں. ماہ شعبان آ گیا آیات ربانی لیے, ہم مبارک دے رہے ہیں آنکھ میں پانی لیے. میں نے جب بی بی تیرے اسمائے قرآنی لیے, میں نے جب بی بی تیرے اسمائے قرآنی لیے, مشکلیں آئی ہیں میرے پاس آسانی لیے. شام کے طائف میں حجت کی نگہبانی لیے, شام کے طائف میں حجت کی نگہبانی لیے. پے کرے بنت علی ہے وصف عمرانی لیے, ایک لمحے میں بہا لے جائے گا تخت یزید, لعنت اللہ علیہ, ایک لمحے میں بہا لے جائے گا تخت یزید. خطبہ زینب ہے دریاؤں کی طغیانی لیے, کم سخن بے شیر کی مسکان کے حملے کے بعد, کم سخن بے شیر کی مسکان کے حملے کے بعد. جنگ جو رونے لگے فن رجز خانی لیے, چادر زینب کے دھاگے سے رفو کر دیجئے, چادر زینب کے دھاگے سے رفو کر دیجئے. دین حق در پر کھڑا ہے چاک دامانی لیے. جی ہمارے ساتھ ہادی حسن صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یا علی مدد. یا علی مدد. مولا امام حسین علیہ السلام کی آمد کی شب ہے, اور امام حسین علیہ السلام کی آمد کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کی کال امام حسین علیہ السلام ٹی وی گروپ کے پروگرام 14,000 حالات سپانسر خراب میں ہیں تو
दुआ करवा दीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप खुद भी सलाम पेश कीजिए मौला की बारगाह में। जी। अस्सलाम वालेकुम अबू अब्दुल्लाह तब हुसैन सन रसूलुल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में। प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम चाहते हैं आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के इन 14,000 सितारों में से एक हो जाएं और स्पॉन्सर हो जाएं। क्या आप चाहेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर बने? उसमें क्या करना पड़ेगा? देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप ये खिदमात जो अंजाम दे रहा है, इनके खर्चो मखारिज हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इसमें हिस्सेदार बन जाएं। हस्ब तौफीक, ज़रूरी नहीं है कि ख़ास अमाउंट हो, वलो एक चाय का कप ही क्यों ना हो। हम चाहते हैं फ़कत आपकी शिरकत हो जाए ताकि आप ये कह सकें कि मैंने इस इदारे की खिदमत की है। तो कैसे होगा? वो होगा कैसे? वो टेलीफोन ऑपरेटर्स आपको बता देंगे, अकाउंट नंबर वगैरह वो आपको बता देंगे। उसमें आप डाल सकते हैं पैसे, या जो भी आप चाहें, जिस तरीके से चाहें वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो आप चाहेंगे स्पॉन्सर बने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के? मेरे थोड़े से हालात ख़राब है, मैं जॉब करता हूँ मगर मेरी नौकरी सेट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी रकम दीजिए। हस्ब तौफीक वो 100 रुपये भी हो सकते हैं, 50 रुपये भी हो सकते हैं। हम चाहते हैं आप स्पॉन्सर बने फ़कत। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आप अपनी इस स्पॉन्सरशिप को अहले बैत के घराने में से किसी एक फ़र्द के नाम कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा सवाब हासिल हो। एक नाम ले दीजिए अहले बैत का। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपने कॉल की है, आपकी कॉल मिली हुई है ना, इसे और 14 मोमिनीन को भी शेयर करें ताकि वो भी स्पॉन्सर बन सकें और मौला की बारगाह में सलाम के लिए प्रोग्राम में कॉल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। ठीक है। आपका जो लाइव प्रोग्राम होता है उसमें मेरा नाम आएगा? ये लाइव प्रोग्राम में ही आप आ रहे हैं। अच्छा, मैं अभी लाइव देख नहीं रहा हूँ बारा, अभी तो मैं ऑडियो पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, लाइव प्रोग्राम में आपकी कॉल मौजूद है इस वक्त। मैं अभी चेक करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें आप। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मौला की शब की आमद और तमाम कायनात में रोशनी। अली रिज़ा साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। या अली कैसे मदद। हैं आप? करम मौला का एहसान, आपकी दुआएं। आप सुनाइए। मौलाना साहब, मैं अभी मौला को सलाम करना चाहता हूँ। जी जी, आप सलाम पेश कीजिए मौला को। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुसैन व अली इब्नुल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। मौलाना साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जाली पकड़ के मेरा नाम लेके, अली रजा का नाम लेके और मेरे भाई जहीर रजा का नाम लेके जाली पकड़ के, और मेरी ज़ौजा शंदूर फातिमा और मेरी भावज में भी शाइस्ता फातिमा, हम 4 अफराद घर में। वालदा का हमारी अभी इंतकाल हो गया है। उनकी नियाबत में भी नईम फातिमा के का भी नाम ले लिएगा, और मेरे वालिद मोहम्मद तकी का भी इंतकाल हो गया, उनके नियाबत में भी नाम ले लिएगा। यानी कि मौलाना साहब, या मौला, ये मैं दुआ मांगना चाह रहा हूँ कि मौला, अभी मैं बहुत, यानी कि बहुत परेशानी, नौकरी नहीं थी मेरी, अभी नौकरी लगी है, 1 हफ्ता हुआ है, तो बहुत परेशानी, घर में गरीबी मुफलिसी बहुत आ चुकी थी। मौला, मेरी परेशानी को ख़त्म कर दीजिए और मुझे अपने पास बुला लीजिए ज़ियारत के लिए। बहुत तड़प रहे हैं हम। मौला, हमारी परेशानियों को, मेरे सब बहन भाइयों की परेशानी को ख़त्म कर दें। घर में बहुत परेशानी आ गई है जब से वालिदा का इंतकाल हुआ है। उसके बाद बहुत, यानी कि हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, यानी कि
مولا ہماری پریشانی کو دور کر دیجئے، میری سب بہن بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دیجئے، ساتھ میں میری بھی کر دیجئے۔ ابھی میرا روزگار لگا ہے، مجھے اس میں ترقی چاہیے، اب مجھے نہیں چاہیے کہ اب میرا روزگار ختم ہو۔ میری شادی ہوئی ہے تو بہت مشکل ہو گئی ہے، مولا میری پریشانی کو ختم کر دیں، میرے بس خوشیاں دیں، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیں۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ جی مولانا صاحب، ہیلو بسم اللہ ہیلو آپ کی آواز جی آ رہی ہے۔ مولانا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو 3 شعبان اور 4 شعبان۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، مولا قبول فرمائیں۔ اور آپ نے جو دعائیں کی ہیں، یقیناً آپ کی ڈائریکٹ آواز بھی مولا کی بارگاہ میں موجود رہی ہے، اور ہم بھی دعا گو ہیں آپ کے لیے، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ تو یقیناً دیکھیں، مشکلوں کے لیے سد باب کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو طریقہ کار چند طریقے ہیں مشکلات کو دور کرنے کے لیے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے نام کی ہم نذر کرتے ہیں۔ تو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہے 14,000 سپانسر کی صورت میں۔ آپ نذر کیجئے اور اپنے اس مشکل کو حل کرنے کی نیت سے آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسر بن جائیے۔ تو کہ اس سے یقیناً مجھے امید ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے شہر میں امام حسین میڈیا گروپ کی آپ جب سپانسرشپ کریں گے، مولا آپ کی مشکلات کو حل فرمائیں گے، اس نظر سے کہ مولا کی بارگاہ میں آپ توسل کر رہے ہیں۔ آپ کیا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے حسب توفیق، ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص اماؤنٹ ہو، چاہے چائے کی پیالی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، آپ چاہیں گے کہ آپ سپانسرشپ پہ نہیں مولانا صاحب، دوبارہ بولیے گا کہ چیریٹی کیسے کرنا ہوگی؟ آپ سپانسرشپ کا اعلان کر دیجئے، ٹیلی فون آپریٹرز آپ سے خود ہی کانٹیکٹ کر کے آپ کو طریقہ سمجھا دیں گے۔ فقط آپ کیا چاہیں گے سپانسرشپ حاصل کریں؟ نہیں، اسپانسرشپ میں کیا ہوگا؟ آپ حسب توفیق جو آپ مولا کے نام کی نذر کرنا چاہیں وہ آپ میڈیا گروپ کو ہدیہ کر سکتے ہیں، جو ضروری نہیں ہے خاص اماؤنٹ ہو، بے شک چائے کی پیالی ہی کیوں نہ ہو، فقط ہدف یہ ہے کہ مولا کی بارگاہ میں آپ کا توسل پیش ہو جائے۔ مولانا صاحب، میں تو مولا کی بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولانا صاحب ابھی تو نہیں، ضروری نہیں ہے، جب آپ کی توفیق ہو تو آپ اسی کیفیت میں آ جائیے گا۔ ابھی آپ فقط توسل کی نیت سے یہ کیجئے، فقط آپ توسل کی نیت سے کیجئے، آپ اس میں یہ نہ سوچئے کہ اتنے کرنے اتنے نہیں کرنے، جب ہوں گے دیکھا جائے گا۔ ابھی آپ فقط توسل اور نذر کی نیت کر لیجئے، شب آمد امام حسین علیہ السلام کی نیت سے۔ یعنی کہ یہ اس میں دینا پڑے گی؟ بے شک آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کم سے کم اماؤنٹ جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بہت بڑی اماؤنٹ کا اعلان کریں، آپ افورڈیبل اماؤنٹ کا اعلان کریں کہ میں مولا کی بارگاہ، اور ہمیں بتائیں بھی نہیں لائیو پروگرام میں کہ آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں، وہ آپ سے ٹیلی فون آپریٹر جب کانٹیکٹ کریں گے انہیں بتا دیجئے گا۔ تو آپ چاہیں گے سپانسرشپ حاصل کریں؟ نہیں مولانا صاحب، ابھی تو نہیں بول۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں۔ بہرحال جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں مولا بہتر جانتے ہیں آپ کے دل کے حال کو، مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں۔ پھر کم سے کم یہی ہے کہ آپ یہ واٹس ایپ نمبر کو 14 مومنین کو آپ شیئر فرمائیے گا، تاکہ وہ بھی مولا کی بارگاہ میں کال کر سکیں، سلام پیش کر سکیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کر سکیں مولا کی بارگاہ میں۔ کال کرنے کا شکریہ، امیدوار ہیں، دعا گو ہیں آج کی شب کا صدقہ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں اور مولا آپ کے مال و رزق میں اضافہ فرمائیں، تاکہ آپ آئندہ نیکسٹ کھلے دل سے مولا کی بارگاہ میں ہدیے کا اعلان کر سکیں۔ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ 14 مومنین کو نمبر ضرور شیئر کیجئے گا۔ آج امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی 17ویں سالگرہ کی مناسبت سے بھی یہاں پر ہمارے ہاں کیک رکھا گیا ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی آمد کی مناسبت سے ہوئے ہے۔ تو بہرحال ہم مومنین کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں مولا کی آمد کی۔ آج کی شب یقیناً خوشیوں کی شب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ہم بات کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کافی ساری احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں، اور قرآن مجید میں بھی کافی ساری آیات ہیں جن کی حقیقت امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو سورہ کوثر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عاص بن وائل نے کہا اور لوگوں نے
काफिरों ने, मुनाफिकों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बे औलादी का ताना दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई। सबसे पहले तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इसकी तफसीर करार पाई, फिर उसके बाद अब हकीकत कौसर का मिसदाक बनना था, तो उसकी तफसीर को आगे जो बढ़ाया है वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने इस तफसीर को आगे बढ़ाया है। और सूरह कौसर की तफसीर जो जारी है, अल कुरान यजरी कमा यजरी लैल व नहार, तो इसी तरीके से हमारे सामने जिस तरीके से आप जानते हैं कि कुरान जारी है, जिस तरीके से दिन और रात जारी रहते हैं, इसी तरीके से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में भी ये तफसीर जारी है। और इस तफसीर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज की शब में मिसदाक बने हैं सूरह कौसर का। फिर हम आगे बात बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत पड़ी है मुबाहिला में जब पहुँचे हैं, फ़मन हाज्जाका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जी, इस वक्त हमारे साथ दानिया अली साहिबा इस्लामाबाद से मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद की शब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सब मोमिनीन को मौला आपको सलामत रखें और ऐसी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फरमाएं। आप पहले से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मीडिया ग्रुप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की स्पॉन्सर हैं। हम चाहेंगे ये व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप कॉल कर रही हैं 14 मोमिनीन को और भी शेयर फरमाइए, ताकि वो भी मौला की बारगाह में सलाम के लिए, मोहब्बतों के इजहार के लिए इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें। इंशाअल्लाह आप 14 मोमिनीन को, ऐसे 14 मोमिनीन को जो कॉल भी करें, ये नंबर ज़रूर शेयर फरमाएंगी इंशाअल्लाह। अब आप करबला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए। और शब जुमा भी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद भी है, ईद की शब है, बहुत बड़ी ईद है। मौला की बारगाह में सर झुकाकर सलाम भी पेश कीजिए और मौला को तबरीक व तहनीयत भी पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमा आलमीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अबुल फजल अब्बास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ आप सबका मुनफरिद अंदाज़ है सलाम पेश करने का। एक साथ मिल के एक ज़बान होकर मौला को सलाम पेश करते हैं। मौला ये मवद्दतें, ये मोहब्बतें आपके खानवादे में जारी व सारी रखें और हमेशा इसी तरीके से मौला की बारगाह में सलाम पेश करते रहें और आप पर भी ये सलामतियाँ और रहमतें नाजिल होती रहें। मौला खुश रखें आपको। कॉल करने का शुक्रिया। नेक्स्ट भी मुंतज़िर रहेंगे। 14 मोमिनीन को नंबर ज़रूर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें। शब आमदे आइए हम हीट मैप की तरफ चलते हैं। देखिए, हीट मैप हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हीट मैप पर दुनिया का नक्शा हमें यहाँ पर थाईलैंड साइड दिखा रहा है, चीन की साइड दिखा रहा है। इस साइड से आप देख सकते हैं कि ये बहरे हिंद के अंदर दिखा रहे हैं। अब हम इस साइड पर आ गए, यूरोप और अमेरिका साइड पर आ गए हैं। तो हमारे लिए देखें इस पना और माशाल्लाह काफ़ी सारे ऐसे मनातिक हैं। पेरिस खसूसन हमारे देखने वालों में शामिल है। लंदन और पेरिस हमारे ख़ास देखने वालों में, और रोमानिया है, इसी स्लोवाकिया, और इसी तरीके से हमारे यहाँ इराक़ तो माशाल्लाह हम खुद हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, इसका तरीक़ेकार यही है, जहाँ पे दरमियान में फ़कत ज़र्द है ना तो ये कम देखने वालों की कैफियत है।
پھر اس کے گرد جتنا یہ دائرہ وسیع ہوتا جائے گا اتنے زیادہ دیکھنے والے ہیں ہمارے، اور جتنا زیادہ یہ کلرفل ہوتا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے ہمارے دیکھنے والے اسی طریقے سے ترکیہ میں بھی دیکھنے والے ہیں، ٹورنٹو میں بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں، اوٹاوا میں بھی دیکھنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہمیں دیکھنے والے ماشاءاللہ موجود ہیں، یعنی اچھے خاصے دیکھنے والے موجود ہیں اور مختلف کیفیات ہیں۔ دیکھیے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ماشاءاللہ دیکھنے والے ہیں مولا، دیکھیے ہاں دیکھیے ہمارے پاس یو کے میں دیکھنے والے تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہیں، ایران میں بھی دیکھنے والے، تہران میں ہمیں دیکھنے والے موجود ہیں، آذربائیجان میں بھی دیکھنے والے ہمارے موجود ہیں، کونیو یہ علاقہ ہے یہاں پر بھی دیکھنے والے ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھیے ہیٹ میپ یہ ہوتا ہے جہاں پر جتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہوگا نا نیٹ ہمارے سائٹ کو دیکھنے والوں کا، یہ وہاں کو آپ کو دکھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہاں رومانیہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھنے والے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا وہاں سے آپ کال بھی کیجئے تاکہ آپ کی کال پروگرام میں آ سکے، اور اپنی ڈونیشن کا اعلان کیجئے تاکہ یہ سلسلہ محبت اہل بیت علیہم السلام رکنے نہ پائے اور آپ سب تک یہ محبت اہل بیت علیہم السلام ہمیشہ پہنچتی رہے۔ ماشاءاللہ دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم ان کی محبتوں کے متقاضی ہیں تاکہ وہ ہمیشہ شریک رہیں۔ یہ میپ دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کہاں اپنی خدمات کو پیش کر رہا ہے، اور یہ خدمات آپ کی کہاں تک اہل بیت علیہ السلام سے رسائی کا سبب بن رہے ہیں اور توسل کا سبب بن رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا جس طریقے سے وسیلے کی ہے، ذریعے کی ہے، سبب کی ہے، اسی طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو ہم کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اہل بیت علیہ السلام تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنے میں مدد کرنی چاہیے اور مومنین کو ساتھ میں شریک کرنا چاہیے اس کوشش کے اندر، تاکہ اگر ہم پہنچ گئے ہیں تو دوسرے بھی پہنچ سکیں۔ کوشش کرنا ہمارے لیے لازمی ہے تاکہ مومنین پیچھے نہ رہ جائیں، اس محبت سے پیچھے نہ رہ جائیں اور ان کو یہ سلسلے پہنچتے رہیں اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ متوسل رہیں۔ اسی مقصد کے لیے یہ آپ کے سامنے اسکرین پر امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا نمبر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے۔ QR کوڈ کو اگر سکین کریں گے تو اپنے موبائل کے کیمرے سے اگر آپ QR کوڈ کو سکین کریں گے تو آپ کی کال پروگرام میں مل جائے گی، اور اگر آپ واٹس ایپ نمبر کو اپنے موبائل میں سیو کر کے واٹس ایپ میں سرچ کریں گے وہاں پر بھی آ جائے گا، وہاں سے بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ اس نمبر پر ڈائریکٹ بھی آپ کال کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑی کاسٹلی ہوگی، اگر آپ واٹس ایپ پر کال کریں تو وہ نسبتاً سستی ہوگی، تو لہٰذا آپ کے لیے واٹس ایپ زیادہ سوٹیبل رہے گا تاکہ آپ طولانی بات بھی کر سکیں اور مولا کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کر سکیں۔ اسی مناسبت سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید میں امام حسین علیہ السلام کا مصداق کہاں قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم نے سورہ کوثر عرض کی آپ کی خدمت میں، اور اسی طریقے سے دیکھیں قرآن مجید بہت باوقار کتاب ہے۔ ایک جملہ ذہن میں آ گیا، کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو کسی بھی کتاب کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے، چاہے وہ مفاتیح الجنان ہو، کوئی دعاؤں کی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب ہو، قرآن مجید کو اس کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے۔ جو مکمل قرآن مجید کی کتاب ہو، صورتیں ہوں جس کتاب میں، یعنی وہ فقط صورتوں پر مشتمل کتاب ہو، تو وہ کسی اور کے نیچے نہیں آ سکتی کتاب۔ لہذا قرآن مجید کو کسی اور کتاب کے نیچے رکھنا حرام ہے، لہذا قرآن مجید کو کسی اور کتاب کے نیچے نہیں رکھ سکتے۔ اگر مفاتیح الجنان ہے اس میں بے شک صورتیں ہیں لیکن اس کے اندر اکثریت قرآن کی نہیں ہے، لہذا اس کا درجہ قرآن کے نیچے ہی آئے گا۔ لہذا ہمیں قرآن مجید کو اوپر رکھنا ہوتا ہے اور دوسری کتابوں کو نیچے رکھنا ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے ہم عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید میں، کیونکہ بعد میں حدیث کا رتبہ آتا ہے لہذا ہم حدیث کو بعد میں پیش کریں گے،
ذریعے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر آپ بھی نور حاصل کیجئے اور توسل کیجئے. یہ ایک انمول ہدیہ ہے آپ کے لیے امام حسین علیہ السلام ٹی وی گروپ. اور ہاں بہرحال ہم اس وقت میں ہم نے آپ کی خدمت میں آئے مباہلہ کو پیش کیا. آئے مباہلہ میں بھی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ کوثر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ زیارت کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے روضے کی. آئے مباہلہ میں بھی امام حسین علیہ السلام شریک ہیں. جب نصارہ نجران نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کیا، وہ اپنی دلیلیں لائے، یہاں سے بھی دلیلیں پیش کی گئیں، تو آخر میں وہ دلیل تو کچھ نہ لا سکے، لیکن کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو ہم مباہلہ کرتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. اگلے دن کے لیے مباہلہ کی آمادگی کی گئی، اور مباہلہ کی آمادگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، کوئی ہے سچا، کوئی ہے ایسا جو مباہلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا گواہ بن سکے، اور ایسا سچا ہو کہ اس کو جھوٹا ہونے کا شبہ تک نہ ہو. بہرحال اعلان کیا گیا، کوئی نہ آ سکا، کوئی بھی نہ آ سکا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمسہ آل ابا
यानी ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम को साथ लिया। जी, बात को हम जारी रखेंगे। सना बतूल साहिबा बहावलपुर से हमारे सना साहिबा बहावलपुर से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, या अली आप मदद। सबको और खास तौर पे अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। वाली तो आप सबको और खासकर मौला की बारगाह में मौला को की विलादत पर मुबारकबाद पेश करते हैं और सलाम पेश करने की साबित हासिल करते हैं। जी, बिस्मिल्लाह। मुझे मौला अली जी, हम आपकी मदद करें सलाम करने में। जी जरूर जरूर। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन ला सय्यमा अबल फज़ल अल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला कबूल फरमाए और आपकी मुबारकबादी भी मौला कबूल फरमाए। आपको भी मौला की आमद की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ज़रूर। बीबी, जिस प्रोग्राम में आपकी कॉल मिली हुई है ना, इस प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर। जी, हम चाहते हैं कि आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की इस मवद्दत को और इस ज़िक्र को, इस तवस्सुलात को पहुंचाने में हिस्सेदार बने और आप भी स्पॉन्सर बन जाएं। तो क्या आप चाहेंगी आप स्पॉन्सर बने? जी मैंने आज शेयर किया था स्टूडियो में। ठीक है, इंशाल्लाह आप भी स्पॉन्सर बन चुकी हैं। तो आपने कोई नाम इख्तियार किया कि इस नाम से आपने स्पॉन्सरशिप का? नहीं। तो 14 मासूमों में से किसी एक का नाम ले दीजिए। 14 मासूमों में से मौला की बारगाह में। जी 14 इमामों में मासूमों में से किसी एक मासूम का नाम ले दीजिए ताकि आपका तवस्सुल मज़ीद कवी हो जाए और ये स्पॉन्सरशिप आपकी मौला की बारगाह में मज़ीद सवाब की हामिल हो जाए। नाम ले दीजिए, बिस्मिल्लाह। बस जी, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मौला कबूल फरमाए, आगे भी उन्हीं की मौला कबूल फरमाए। और 14 मोमिनीन को और भी ये नंबर शेयर फरमाइएगा। 14 मोमिनीन को और भी ये नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी प्रोग्राम में कॉल कर सकें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर बन सकें। सलामत रहें। कॉल करने का शुक्रिया। नेक्स्ट भी मुंतज़िर रहेंगे। मौला आपको जल्द करबला मौला आने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। आमीन। दुआओं की इल्तिमास। सदा सलामत रहें। मौला खुश रखें आपको। मौला की बारगाह में मोमिनीन कॉल करते हैं ताकि वो तवस्सुल कर सकें और उनकी ये कैफियत मौला की बारगाह में यकीनन मकबूल है और उनका तवस्सुल करना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह चाहता है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का एहतराम किया जाए। और उनके दर पर आकर अगर कोई सवाल करता है तो यकीनन ये उनका एहतराम है अल्लाह ताला की बारगाह में भी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जो इज़्ज़तें अता फ़रमाई हैं उनमें से एक इज़्ज़त ये है कि उनके वसीले से जो सवाल किया जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और जो इनका वसीला इख्तियार करता है इसका मतलब ये है कि वह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इज़्ज़त करता है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को लाइक तवस्सुल समझता है। इसलिए इनके दर पे आके सवाल करना यकीनन हमारी भी इज़्ज़त है, क्योंकि हम ऐसे दर पर आकर मांग रहे हैं जो महल हुबूत मलाइका है, मलाइका के नाजिल होने का मकाम है। यहाँ पे मलाइका आकर अपनी ख़ताएँ दरगुज़र कराते हैं। यहाँ पर आकर फ़रिश्ते अपने लिए रहमतें तलब करते हैं। बहरहाल खुदावंद मुताल हम पर रहमत बरकत नादिल फरमाता है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से। ये प्रोग्राम आप सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल करने के लिए बनाया गया है। 2 घंटे का प्रोग्राम है और पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12
اور انڈین ٹائم رات 10:30 سے 12:30 کے دوران لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کال کر سکتے ہیں، اپنی ڈونیشن کا اعلان کر سکتے ہیں، توسل کر سکتے ہیں اور مولا کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. یقیناً جو اہل بیت علیہ السلام تھے، ہمارا ربط ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور آپ توسلات میں شریک ہوتے رہیں، توسل کرتے رہیں، مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز پہنچتی رہے، یہ سلسلے جاری و ساری رہیں. لاریب عاطف صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. پیر مولا علی مدد. مولا کی آمد کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بھائی میں بھی آپ کو تمام امام حسین ٹی وی کی ٹیم کو اور سارے مومنین کو مولا حسین کی آمد بہت بہت مبارک پیش کرتی ہوں. کہ میں مزمانہ کی بارگاہ میں مولا حسین کی آمد کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور بھائی ہمارے لیے آج خصوصی دعا کیجیے گا کہ مولا آج کے دن کے سچے میں ہماری مولا تمام پریشانیوں کو مولا دور کر دے اور مولا ہمیں جلد سے جلد صاحب اولاد کر دے اور مولا ہمیں جلد سے جلد اپنے روزے کی زیارت نصیب کر سکے. اور جتنے بھی مومن مجھ سمیت بے اولاد ہیں مولا ان سب کو مولا جلد سے جلد صاحب اولاد کر دے. آج کے دن کے سچے، آج کی شب کے سچے، آج شب جمعہ بھی ہے مولا، آپ کو شہزادہ مصر کا واسطہ ہے مولا، آپ کو مولا مصر کو آپ کا بیٹے کی مولا حسین کی آمد کا واسطہ مولا، ہمیں جلد سے جلد صاحب اولاد کر دے مولا. میرے بھائی کی مشکلات کو حل کر دے، اس کو برسر روزگار کر دے مولا. میرے شوہر کو صحت و تندرستی والی زندگی دیجیے گا. الہی آمین. مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں. جناب آپ کی کال جس پروگرام میں ملی ہے نا، اس کا نام ہے 14,000 سپانسر. اس پروگرام کا مقصد یہی ہے مومنین کے توسل جاری رہیں اور مومنین اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کرتے رہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے. اس مقصد کے لیے یہ پروگرام بنایا ہے اور اس کا نام ہے 14,000 سپانسر. تو کیا آپ چاہیں گے کہ 14,000 سپانسر میں سے ایک ستارہ آپ ہو جائیں اور آپ بھی سپانسر بنیں؟ بھائی ضرور، مولا ہمیں تشریف دے تو ہم ضرور بنیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جو یہ آپ نے نیت فرمائی ہے نا، 14 معصوموں میں سے کسی ایک معصوم کے نام کر دیجئے، کوئی ایک نام لے دیجئے. جی اب یہ جو آپ نے نیت کی ہے نا سپانسر بننے کی، اس نیت کو آپ 14 معصوموں کے ناموں میں سے ایک نام میں کر دیجئے، ایک نام لے دیجئے. کوئی اہل بیت کے گھرانے میں سے کسی ایک فرد کا نام لے دیجئے. امام زمانہ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا قبول فرمائیں. یہ 14 مومنین کو یہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی مولا کی بارگاہ میں کال کر سکیں، توسل کر سکیں اور سپانسرشپ کا اعلان کر سکیں. اب کربلائے مولا میں آپ کی آواز ہے، ذری سامنے ہے، کھڑی ہو جائیے، سر کو جھکا کے مولا کی بارگاہ میں مولا کو سلام پیش کیجیے. جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، ابن سید المرسلین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا العالمین، السلام علیکم یا مولا صاحب رسول الزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مولا میری فریاد کو اپنے دربار میں قبول کیجیے اور میرا سلام قبول کیجیے. مولا اپنے دربار میں مولا میری حاضری قبول کیجیے گا. مولا ہم آ تو نہیں سکے اور مولا ہم ایک ایسا وسیلہ بنا دیجیے کہ ہم مولا آپ کی زیارت کر سکیں، آپ کے روزے پہ آ سکیں. مولا ہماری اتنی مدد کیجیے گا. مولا یہاں بیٹھے ہم آپ سے مولا فریاد کرتے ہیں مولا کہ ہمیں جلد سے جلد صاحب اولاد کر دیں. مولا ہمیں اس نعمت سے مولا محروم نہ رکھیں. مولا آپ سے ظاہر کو ساتھ دیتے عطا کرنے والے ہیں تو مولا آپ کے در میں کس چیز کی کمی ہے تو مولا آپ ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں ضرور قبول کرے. مولا ہمیں جلد سے جلد صاحب اولاد کر دیں. مولا علی مدد. مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ کو اولاد عطا فرمائیں،
आज की शब में आपने सवाल किया, करबलाए मौला में आवाज़ पहुंचाई, यकीनन दिल की तड़प को मौला की बारगाह में पहुंचाया। मौला आपकी मुश्किल को आसान फरमाए, आपको औलाद अता फरमाए। कॉल करने का शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। और 14 मोमिनीन को भी व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला आपको सलामत रखें। मीर मोहम्मद साहब शहदादपुर सिंध से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली मदद। थैंक यू सो मच अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला की आमद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। मौला आपको सलामत रखें। जिस प्रोग्राम में आपने कॉल की है, इस प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ये आप जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में तवस्सुल कर रहे हैं ना, ये हमेशा जारी और सारी रहे, इसका चिराग हमेशा रोशन रहे। तो हम चाहते हैं कि इसको हमेशा जारी और सारी रखने के लिए आप इसकी मदद करें और आप इसके स्पॉन्सर बन जाएं। तो क्या आप इसके स्पॉन्सर बनना चाहेंगे? जी जी, हमेशा हम आपके साथ हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और इस स्पॉन्सरशिप को आप 14 मासूमों में से किसके नाम करना चाहेंगे? कोई एक नाम ले दीजिए अहले बैत के घराने में से। एक इमाम अली को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और ये जो व्हाट्सएप नंबर पर जिस पर आप कॉल कर रहे हैं ना, इस व्हाट्सएप नंबर को 14 मोमिनीन को, ऐसे 14 मोमिनीन को शेयर करना है जो कॉल भी करें और मौला की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें इंशाअल्लाह। जी। अब आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में है। करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं और सर झुका के मौला को सलाम पेश करें। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। एक शेर पढ़ लीजिए आप, बिस्मिल्लाह। ज़्यादा तुलानी ना कीजिएगा, पीछे कॉल्स हैं। बिस्मिल्लाह, एक शेर पढ़ लें, बिस्मिल्लाह। जी जी। मेरा हुसैन क्या है सिर्फ को ही पता है, मेरा हुसैन क्या है बस रब को ही पता है। इसकी रजा में लोगों, इसकी रजा में लोगों, अल्लाह की रजा है, मेरा हुसैन क्या है बस रब को ही पता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगी। आपका अपना प्रोग्राम है। सलामत रहें, आबाद रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। करबला मौला में मोमिनीन कॉल करते हैं ताकि मौला से कांटेक्ट कर सकें, रब्ता कर सकें, तवस्सुल कर सकें। तमाम मोमिनीन से यही सदा रहती है, कॉल भी कीजिए, दूसरों को भी इस प्रोग्राम में शरीक कीजिए और 14 मोमिनीन को ये नंबर ज़रूर शेयर फरमाइए ताकि वो भी प्रोग्राम में कॉल कर सकें और शरीक हो सकें। मौला आप सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाएँ और ये मवद्दत व मोहब्बतों के सिलसिले जारी व सारी रहें। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। हाँ थी तो सिलसिला फैज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम जारी व सारी है और मौला का एक सिलसिला है जिसे हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सिलसिला आप सब के लिए है और हम सब इस सिलसिले से वाबस्ता हैं। किरण तालपुर साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली मदद। मौला की आमद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। सलामत रहें, आबाद रहें। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में मौजूद है।
کیا آپ پہلے سے اسپانسر ہیں اس پروگرام میں؟ جی نہیں. تو ہم چاہیں گے کہ یہ سلسلہ ذکر اہل بیت علیہم السلام، یہ زیارتوں کا سلسلہ، یہ توسل کا سلسلہ جاری و ساری رہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی سپانسر بن جائیں. تو کیا آپ سپانسر بننا چاہیں گی؟ جی. مولا قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور چاہیں گے اس سپانسرشپ کو اہل بیت کے گھرانے میں سے کسی ایک فرد کے نام سے منسوب کر دیں. تو کوئی ایک نام لے دیجئے جن سے آپ توسل کرنا چاہیں. جی مولا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا قبول فرمائے اور ہمیشہ سلامت رہیں. 14 مومنین کو اور بھی یہ نمبر آپ نے شیئر فرمانا ہے تاکہ وہ بھی اس پروگرام کے ذریعے سے مولا کی بارگاہ میں توسل بھی پیش کر سکیں اور سپانسرشپ بھی حاصل کر سکیں. سلامت رہیں. اس وقت آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں شب جمعہ ہے، شب آمد امام حسین علیہ السلام ہے. کربلائے مولا کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیے، دل پر ہاتھ رکھ کے نظریں جھکا کر مولا کو سلام پیش کیجیے. السلام علیکم آبا عبداللہ حسین. ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں سلام پیش کرنے میں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صحاب الحسین. لا سیما ابا الفضل العباس یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہیں. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، گھر کی جو تکالیف ہیں مولا انہیں حل فرمائیں. جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں. ذریعہ امام حسین علیہ السلام آپ کی نظروں کے سامنے ہے. توسل کی گھڑیاں ہیں. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں اور دنیا آخرت آپ کی قرب و جوار اہل بیت علیہ السلام میں قرار دیں. آپ کے گھر کی جو پریشانیاں مولا حل فرمائیں. مرحومین کی مغفرت فرمائیں. جو حیات ہیں مولا ان کو اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ لمبی عمر عطا فرمائیں اور مال رزق میں اضافہ فرمائیں. ہر امتحان میں کامیابی نصیب فرمائیں. سلامت رہیں، آباد رہیں. کال کرنے کا شکریہ، سپانسرشپ حاصل کرنے کا شکریہ. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. 15 شعبان کی رات تک یہ سلسلہ توسل جاری و ساری ہے. 2 گھنٹے کا پروگرام ہے. پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12 کے دوران، انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 سے 12:30 کے دوران اس میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور مومنین کو بھی کال کرا سکتے ہیں تاکہ وہ جو توسل کریں تو اس کا بھی ثواب اور ان کے توسل میں بھی جو ان کو حصہ ملے، آپ بھی شریک ہوں. سلامت رہیں، آباد رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا اپنے چاہنے والوں پر رحمت برکت نازل فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت برکت اہل بیت علیہ السلام کے در سے ہم پر نازل ہوتی ہیں. آج کی شب میں خوشیاں ہیں کربلا معلیٰ میں اور وہ کیفیت ہے جس کا بیان کرنا مشکل رہے گا، مشکل ہوگا. ہاں، ہم پہنچے تھے مباہلہ میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ میں سب کو بلایا، کوئی نہ آیا. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ساتھ لیا جو ہمیشہ کے ساتھی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو ساتھ لیا. امام حسین علیہ السلام کو اپنی گودی میں لیا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی انگشت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ عصمت کا پردہ بن کے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پیچھے پیچھے چلتے آئیے اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جائیے. اس منظر کو دیکھ کر نصارہ نجران کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا اور مناظرے سے تو پہلے ہی بھاگ چکے تھے، اب مباہلے سے بھی جزیہ دے کر جان چھڑائی. یہ مقام دوسری آیت جس میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ آیا. بات ہے سورہ احزاب کی آیت تطہیر پر پہنچی. آیت تطہیر میں بھی امام حسین علیہ السلام شریک ہیں.
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाफ़ बदन तारी हुआ, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर का तवस्सुल किया, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इजाज़त लेकर तशरीफ़ फरमा हुए, उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी तवस्सुल का इरादा किया और मुतवस्सिल हुए चादर की जानिब। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम, फिर जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सब शरीक हुए और सब ने मिलकर चादर में जाकर यकजहती का ऐलान फरमाया। इतना खुश हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला से फरमाया, कहने लगे कि अल्लाह इनको इस तरीके से पाकीज़ा रख जिस तरीके से पाकीज़ा रखने का हक़ है। रसूल की दुआ कुरान की आयत बन के नादिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इस आयत में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक हैं। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं मवद्दत फिल कुर्बा तुमसे चाहता हूँ अजर रिसालत में, और कुछ नहीं चाहता। इस आयत में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक हैं। अब मरज अल बहरैन यल्तक़ियान यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान, यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ में वल मरजान, इनमें लुअलुअ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, मरजान इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम को करार दिया गया है। इसी तरीके से अल इज़्ज़तु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिल मोमिनीन, इन मोमिनीन में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक हैं। और अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन में भी जिन पर नेमतें नाज़िल हुई हैं, अलैहिम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये रहमतें बरकतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए और अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस फरमाई हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रहमत अल्लाह ने जो नाजिल फरमाई, उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम दुनिया में फैलाने का इरादा फरमाया। आमद की चंद घड़ियाँ ही गुजरी हैं, मलाइका का जम गरीफ जम गफ़ीर मुबारकबादी के लिए आया, तहनीयत मुबारकबादी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर फुतरुस को पेश किया गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखें फरिश्तों से गुनाह नहीं होते, अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी गुनाह नहीं होते, तर्के औला होते हैं। तर्के औला यानी देखिए, हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, नेक लोगों की जो नेकियां होती हैं ना, मुकर्रब लोगों के नज़दीक गुनाह होती हैं। एक किनाया है कि काफ़ी सारी ऐसी नेकियां होती हैं, नेक लोग जो अंजाम देते हैं, मुकर्रब लोगों के नज़दीक वो गुनाह होती हैं, क्योंकि उनकी मार्फत इतनी होती है, लिहाजा इस मार्फत में उन्हें उनकी नेकियां भी गुनाह नज़र आ रही होती हैं। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए नेकियों की तरफ बढ़ने की। तो इसी मुनासिबत से मौला की बारगाह में हम मौजूद हैं और किस्सा कर रहे हैं जनाब फुतरुस का। फुतरुस वो फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जन्नत इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, बहुत बरक रफ्तार मलक है, कहा उड़कर देख लो, उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे, 50,000 पर एक एक करके सब टूट गए।
कहने लगा इतनी बड़ी जन्नत? फरमाया अभी तो तूने अली के शियों की में से कम तरीन दर्जा रखने वाले की जन्नत को कामिल ना देखा है। यास्मीन कौसर साहिबा हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद, या मौला अली मदद। मौला की आमद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। सलामत रहें, मौला आपको खुश रखें। इंशाल्लाह आप पहले से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की स्पॉन्सर हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाने में आपने हिस्सा लिया है। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। हम चाहेंगे ये व्हाट्सएप नंबर जो आप सामने देख रही हैं, इसे अपने पास जो इस पर आपकी कॉल मिली हुई है, इस व्हाट्सएप नंबर को 14 मोमिनीन को और शेयर फरमाएंगी ताकि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और मौला से तवस्सुल कर सकें। इस वक्त आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में है, सामने ज़री है, खूबसूरत मंज़र है, शब जुमा और शब आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। करबला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए, दिल पर हाथ रखिए, धड़कनों को मौला के नाम करने की नीयत से सर झुका के मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइका व नाहत बिरहलिका अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बकीतु व बकिय लैलु व नहार वजअल अल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिका। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या सखाए सकीना, अस्सलामु अलैका वफादार हुसैन, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़ैनुल आबिदीन फ़ख्र साजिदीन, अस्सलामु अलैका या साहिब अस्फ़िल ज़मान, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फ़रज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह खैर भाई साहब, आपने हमारा आवाज़ पहुँचाया। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, कामयाबी दे, पूरा टीम को। मौला आपको भी सलामत रखें, मौला आपकी दुआएं आपके हक़ में भी कबूल फरमाएं और आपको जल्द करबलाए मौला आने की सआदत अता फरमाएं। आपकी जो जो हाजात हैं मौला पूरी फरमाएं, मुश्किलात हल फरमाएं, हमेशा शर शैतान और आदा से मौला आपको महफूज फरमाएं। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला आपको खुश रखें। सलामत रहें। आपका भी शुक्रिया, आपने कांटेक्ट किया। और 14 मोमिनीन को भी नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मौला की बारगाह में तवस्सुल के लिए कॉल कर सकें। सलामत रहें, आबाद रहें। ज़रूर इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, मौला की मान में। अब हम पहुँचे फुतरुस की आमद पर। फुतरुस के पर झड़ गए। ज़वार मशहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। बहुत आप लोगों को मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद की। 3 शाबान मौला की आमद की। उम्मत जहाँ पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ जा रही है, इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क के थ्रू तमाम मोमिनीन मोमिनात को और तमाम उन दोस्तान को जो मौला से मोहब्बत करते हैं, तमाम दोस्तान को बहुत बहुत मुबारक और बिलखुसूस वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं इस उन्वान से कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या औलादुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या साहबुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा फज़ल अब्बास अलमदार, अस्सलामु अलैका जनाब अली अकबर जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैका जमी शोहदा करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका मेरे मौला, आपकी आज आमद का सआदत में मौला इतनी दिल खुश है कि करीम करबला नवाब करबला हम आपसे बहुत दूर हैं, लेकिन मौला इस वक्त ऐसे महसूस हो रहा है कि मौला आपके कदमों में हम पड़े हुए हैं, मौला आपकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेरे मौला आपकी बारगाह में दुआ है, शब जुम्मा है, जनाब अली अकबर की जवानी का सदका मौला
तमाम उन मोमिनीन मोमनात के दर्जात बुलंद फरमाइए जो फानी दुनिया से कूच करके गए हैं। बिलखुसूस मेरे मरहूम वालिदैन, सादात, गैर सादात, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन इस फानी दुनिया से कूच कर गए, हम तमाम मरहूमीन को मौला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाइए और अपनी शफात उन्हें नसीब फरमाइए। मेरे मौला, ये इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क बहुत बड़ा एक काम कर रही है मौला। इनको जितना सहारा है मौला एक खालिक अकबर की जात का और मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबुल हवाइद गाजी अब्बास अलमदार का सदका आज ये दुनिया भर में इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क चल रहा है। और मैं उन तमाम दोस्तान और अहबाबान से भी गुजारिश यही करूंगा जो हमारी आवाज सुन रहे हैं कि आप इस आलमी टेलीविजन नेटवर्क के हमराह चलें, इनको जितनी हो सके आगे तक तो 14 दोस्तों तक इन्हें शेयर करें और मोमिनीन ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर बने ताकि ये टेलीविजन नेटवर्क और मजबूत बन सके। और ये दोस्तान जितनी खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद मुताल की बारगाह में ये दुआ है कि सदका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। काफी दिन हो गए हैं सैयद खादिम हुसैन शाह की आवाज नहीं सुनी। सैयद खादिम हुसैन शाह और दूसरे सादा जितने भी दोस्तान हैं, उन तमाम दोस्तान के लिए आज के दिन दुआ गो हूँ कि सदका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला आपको कोई गम न दे, गम में शबीर के सिवा हमेशा मौला आपको आले मोहम्मद की खुशियाँ नसीब फरमाए। आपका साया आपके बच्चों पे कायम हो और हमारे लिए आप दुआ गो रहें। मौला आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपको भी सलामत रखे। मौला आपको भी सलामत रखें। पुरखुलूस दुआओं का शुक्रिया, पुरखुलूस शिरकत का शुक्रिया। मौला आपका खुलूस हमेशा सलामत रखें और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत हमेशा शामिल हाल रहे। दुआ है जल्द करबला मौला आने का शरफ़ हासिल हो और मौला आप पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। मुखलिस हमारे कॉलर्स हैं और मोहब्बत के साथ कॉल करते हैं और मौला से तवस्सुल के लिए प्रोग्राम में कॉल करते हैं, ये उनका शुक्रिया है। और मोमिनीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं उस उन्वान से कि वो मौला की बारगाह में तवस्सुल के लिए हमारे प्रोग्राम को इख्तियार फरमाते हैं। ये उनकी ज़रा नवाजी है कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के तवस्सुल के लिए हमसे कांटेक्ट करते हैं। उनका बड़ा एहसान है मोमिनीन का, क्योंकि वो मौला की बारगाह में तवस्सुल के लिए हमें मौका देते हैं कि हम खिदमत करें और ये शरफ़ बख्शते हैं कि हम इस सिलसिले में उन्हें मौला की बारगाह में साथ लेकर चल सकें। मौला की आमद की शब है और ये मोहब्बतों भरी शब है, ऐसी शब है जिसका कोई जवाब नहीं। मोहब्बतों भरी शब और अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल की शब। कोयटा से ज़हरा साहिबा हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। आवाज़ आ रही है? जी या अली मदद, आपको आवाज़ आ रही है इंशाल्लाह? जी जी आ रही है, बस मेरी आवाज़ मुझे रिपीट हो रही है। हाँ, तो आप अपने यहाँ कोई डिवाइस रोशन कर रखी है जो कि आपको दोबारा आ रही है या कान में आवाज़ आ रही है दोबारा आपको? मुझे ही मेरी आवाज़ सुनाई दे रही। इंशाल्लाह कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर लेंगे, वो ठीक कर देंगे आवाज़ को। तो अब ठीक हुई आवाज़ क्या? जी आपकी आवाज़ ठीक हो गई अब क्या? हेलो, अब आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप कह रही थी ना आपको आपकी आवाज़ रिपीट होके सुनाई आ रही है, अब ठीक हो गई आवाज़? नहीं, अभी भी आ रही है। चलें, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप मौला की बारगाह में आवाज़ है आपकी। तो आप 14,000 स्पॉन्सर में शरीक हैं प्रोग्राम में, तो क्या आप चाहेंगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की स्पॉन्सर बने? जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस स्पॉन्सरशिप को 14 मासूमीन अहले बैत के घराने में से किसी एक नाम को ले दीजिए ताकि इस स्पॉन्सरशिप का आपको और ज़्यादा सवाब मिल सके। जी पिछली बार मैंने अली सर के नाम किया था, इस बार मैं हज़रत ज़ैनब सलाम अलैहा के नाम करना चाहूँगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा फरमाया ना आपने? जी जी।
मौला कबूल फरमाए और आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए और मौला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। ये नंबर जो व्हाट्सएप आपके सामने मौजूद है 14 मोमिनीन को और भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें और तवस्सुल कर सकें। मौला आपको सलामत रखें। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला की बारगाह में खड़ी हो जाएं, करबला की तरफ रुख कर लीजिए और दिल पर हाथ रख के धड़कनों को मौला के इनाम करने की नीयत से सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या ज़ैनब कुबरा। मौला आप तो जानते हैं, बीवी आप तो जानते हैं, हर दिलों से आगाह है। मेरी मुश्किल को दूर फरमा। और 12-14 है जो हम आपसे तवस्सुल करते हैं, खुदा उनकी कबूलियत जल्द अज जल्द करे और मेरे दिल की हर बात से आप आगाह है। इलाही आमीन। मौला आपके तवस्सुल को कबूल फरमाए, आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सलामत रहें, आबाद रहें। मौला आपको जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फरमाए, शर शैतान व आदा से आपको महफूज फरमाए। जहाँ कहीं भी मोमिन आबाद हैं अल्लाह ताला उन्हें दुश्मनान अहले बैत से महफूज रखें और उनकी इज़्ज़त व नामूस की मुहाफ़ज़त फरमाए। आपकी भी जो हाजात हैं आपके और मौला के दरमियान हैं, आप दुआएं जो आपने की हैं वो भी और जो रह गई हैं वो भी मौला कबूल फरमाए, आपकी मुश्किलात हल फरमाए। आपकी कॉल करने का शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपके तवस्सुल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला खुश रखें आपको, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम आपकी खिदमत में है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं। QR कोड को मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे तो आपकी कॉल व्हाट्सएप प्रोग्राम में मिल जाएगी। नज़र अब्बास साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। किबला मौला हुसैन की बारगाह में सलाम पेश करना है। जी जी, मौला की आमद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, आपकी टीम को भी बहुत बहुत मुबारक हो। सलामत रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं, सीने पर हाथ रख के मौला को सलाम पेश करें और मुबारक पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम अली इब्न अल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम औलादुल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम असहाबुल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम फज़लुल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे सलाम को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाइए। ख़ुसूसन बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इमाम ज़माना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मौला अली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मौला हुसैन की विलादत खुदावंद आले मोहम्मद के सदक़े से मौला अब्बास की भी बहुत बहुत मुबारक हो। बीवी बनीन को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसकी हम जो मौला की बारगाह में सलाम, मौला इस सलाम को मेरी कबूल करना अपनी बारगाह में, हमारे रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकत नाज़िल फरमा। खुदावंद आले मोहम्मद के सदक़े से मेरी वालदा जो वो हो गई बहुत, उनको आला मुकाम पर जन्नत में नसीब अता फरमा, नाकानी फात से महफूज फरमा, दुनिया की खैर आखिरत की खैर अता फरमा, इल्म से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार हमें इस दिन के सदक़े से बरकत, दिन के सदक़े से परवरदिगार हमारे घर में भी खुशियाँ नाजिल फरमा, नाकानी फात से महफूज फरमा। परवरदिगार आपकी टीम जो काम कर रही है उसमें बहुत तरक्की अता फरमा, इसके प्रोग्राम को वसी बना आले मोहम्मद के सदक़े से। और जो हमारे हाजात है उनको पूरी अता फरमा और वक्त इमाम के ज़हूर में ताजिल अता फरमा, इमाम के लश्कर में हमें अता फरमा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मौला सलामत रखे आपको। आपकी कॉल 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम में मिली और आपने मौला की बारगाह में तवस्सुल फरमाया, शुक्रिया। मैं चाहूँगा आपको इस प्रोग्राम में के ज़रिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का स्पॉन्सर बनाऊँ, तो क्या आप चाहेंगे इस मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर बने? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अच्छा, पहले आप स्पॉन्सर हैं इस प्रोग्राम के। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और 14 मोमिनीन को भी ये नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस प्रोग्राम के ज़रिए से कॉल कर सकें और स्पॉन्सर बन सकें। जी जी जी, मैं आपके लिए भी, ख़ुसूसन टीम के लिए भी दुआ कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम के लिए भी वसी परवरदिगार तौफ़ीक़ बनाए आले मोहम्मद के। हमारी दुआएं हैं मोमिनों की कि ये इस प्रोग्राम को अच्छा बनाए और इसको बेहतर से बेहतर और तरक्की अता फरमाए।
आपके इलाही आमीन, दर्जात बुलंद फरमाए इस काम में, इलाही और आमीन, हमारे लिए भी कार्य खैर में दुआ करना कि हमारे रिज़्क में रोजी में बरकत नाज़िल फरमा। इलाही परवरदिगार आमीन, आलम हमें सेहत और सलामती दे, इलाही जो आमीन, भी दुनिया की हाजात हैं पूरी अता फरमा इलाही आले आमीन। मोहम्मद के साथ। मौला सलामत रखें आपको। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, नेक तमन्नाओं का। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। इलाही इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी, जज़ाक सलामत रहें। और मोमिनीन को भी नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें और प्रोग्राम में शरीक हो सकें। सलामत रहें, आबाद रहें। फुतरुस उड़ते उड़ते थक गए, अब पर जो टूटे, क्योंकि इसने तरक औला किया था। अल्लाह तबारक व तआला के इस फरिश्तों की, अच्छा इसके बारे में और भी एक मिलता है कि इसने विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कबूलियत में थोड़ा सा तामुल किया था, वक्फ़ा किया था। इस वजह से इसको जो इतने सारे पर दिए गए थे वो छिन गए थे। बहरहाल काफ़ी अरसा रहा बेपर, बेबाल, बेपर। अच्छा, फ़ारसी ज़बान में बाल जो कहा जाता है ना, वो उर्दू ज़बान में पर के माने में ही होता है। बाल व पर, ये अत्फ़ बयान ही किया जा सकता है। अगर अरबी ज़बान में कहा जाए, एक चीज़ दूसरे को वाज़े जो कर रही है उसे बयान कहा जाता है अरबी ज़बान में। तो लिहाजा बाल फ़ारसी ज़बान में जिन्हें कहा जाता है उन्हें उर्दू ज़बान में पर कहा जाता है। लिहाजा बाल जिब्रील जो लिखी गई किताब अल्लामा इकबाल ने लिखी ना, वो जिब्रील के बाल उर्दू में जिसे बाल कहा जाता है वो नहीं है, वो जिब्रील का पर है मुराद, उससे मुराद जिब्रील के पर है, उसका मतलब ये हो जाता है। बहरहाल तो इसके पर झड़ गए, काफ़ी अरसा वादी में पड़ा रहा। जब ये वादी में पड़ा रहा, ज़ाहिरी बात है गिरिया उगा, जिससे नेमतें छिन जाएँ उसके लिए अहले बैत के अलावा कौन आसरा हो सकता है। बहरहाल नेमतें लेने के लिए, नेमतें बचाने के लिए, छिनी नेमतें दोबारा लौटाने के लिए दर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का है। लिहाजा मौला की बारगाह में इसने सर झुका के इंतज़ार किया कि कोई ऐसा वक्त आए कि तवस्सुल करे, कि देखा जिब्राइल अमीन इतनी बड़ी फ़ौज को लेकर ज़मीन पर आ रहे हैं। कहा बात कोई ख़ास ज़रूर है। कहा कहाँ चले? कहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बहुत बड़ी खुशी आई है। कहा क्या हुआ? कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। तवस्सुल के आंसू आँखों में आए। कहा मुझे भी साथ ले चलो। लेकर चले, घर पहुँचे। घर पहुँच के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया, इस हदफ से आए हैं। फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के झूले से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पंघूड़े से जाकर मस कर दिया जाए। मस किया। अल्लाह मान, पहले तो एक पर था, थे ज़्यादा, लेकिन जो एक था ना उसकी जगह पे कई पर उगाए। अब परों की ज़्यादती देखें, अब परों में इजाफा काफ़ी तरह से हो सकता है। एक तो ये पर घने हो जाए, एक ये हो कि परों की तादाद में इजाफा हो जाए, ये भी हो सकता है। जिस तरीके से आज के दौर में तो आपके सामने है कि हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर में परों की तादाद ज़्यादा रखी जाना। अब बात कुदरत से हो रही है। आज के दौर में परों की तादाद से कुदरत को नहीं पहचाना जा सकता। इसमें हो सकता है कि 2 पर हों और वो पुराने ज़माने के 1000 परों से ज़्यादा ताकतवर हों। लिहाजा यहाँ पे बात कुदरत की हो रही है। इस मुनासबत से परों की तादाद को जिक्र किया गया है, क्योंकि उस ज़माने में तादाद ही, जिस तरीके से अरब में भी यही है, आज भी यही है। जिस कबीले, जिस कौम की तादाद ज़्यादा हो, जिस कौम कबीले की तादाद कम हो, उस पर वो फ़ख्र किया करते हैं। लिहाजा यहाँ पर भी तादाद की बात लोगों के फ़हम व फरासत के एतबार से की गई कि बाल पर ज़्यादा उगाए। अब वो पर जो ज़्यादा उगे तो इतने ज़्यादा पर हो गए कि रफ्तार में इजाफ़ा हो गया। मुराद यही था। अब रफ्तार में जो इजाफ़ा हुआ, इस रफ्तार के सबब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से जो उड़ा
कहता है अना अतीकुल हुसैन, अना अतीकुल हुसैन, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ाद करदा हूँ, मैं आज़ाद करदा ग़ुलाम हूँ। अतीक कहा ही उसे जाता है कि जो ग़ुलामी से आज़ाद हुआ हो। लिहाजा अतीकुल हुसैन कहने का मतलब, कोई कहे कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अतीक हूँ, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ाद हूँ, कोई तर्जुमे में कहे, अतीक का मतलब होता ही है जो ग़ुलामी से आज़ाद हुआ हो। तो मतलब ये बनेगा कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज़ाद करदा ग़ुलाम हूँ, आज़ाद करदा ग़ुलाम हूँ, आज़ाद शुदा ग़ुलाम हूँ। लिहाजा मलिक शहजाद ऐवान साहब इटली से हमारे साथ शरीक महफिल है। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। पीर मौला अलैहिस्सलाम अदब, क्या हाल है? खैरियत ठीक है? करम मौला का एहसान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक आपको भी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, मौला आपको खुश रखें। आपने कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने का शुक्रिया। आप पहले से स्पॉन्सर हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के? जी नहीं, हम वैसे राब्ता हुआ था तो फिर जो है ना वो नहीं हो सके शरीक वगैरह। अभी पहली दफा आप इटली में किस सिटी से कॉल कर रहे हैं? माशाल्लाह। आप इमाम हुसैन ये इटली के किस सिटी से कॉल कर रहे हैं? हम इटली के मिलान सिटी से। यहाँ पे जाफी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से तंजीम है, तो उसके हमें मौलाना सादत भी दी है खिदमत करने की। माशाल्लाह जो भी प्रोग्राम बलादत शहादत से वाले से मुहर्रम और अरबाइन का जुलूस मुहर्रम के साथ माशाल्लाह प्रोग्राम माशाल्लाह, ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पर। मौला कबूल फरमाए। बिल्कुल यकीनन मिलान शहर इटली मिलान से आप शिरकत फरमा रहे हैं। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। तो हम चाहेंगे कि आप 14,000 स्पॉन्सर में से एक सितारा बने और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर बन जाएं। जी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप अपनी इस स्पॉन्सरशिप को 14 मासूमों अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में से किस फ़र्द के नाम करना चाहेंगे? कोई एक नाम ले दीजिए। अच्छा, एक नाम जो ले दे, क्योंकि आज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद है, तो फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे जो है ना वो माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर आपने तवस्सुल किया। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया आखिरत में अपना कुर्ब आपको नसीब फरमाएँ और आप पर ये रहमत मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम जारी और सारी रहे और जल्द करबलाए मौला आने का शरफ हासिल हो। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मौला में है। मौला की बारगाह की तरफ रुख कर लीजिए, करबला की तरफ रुख कर लीजिए। खड़े हो जाइए, सीने पर हाथ रख के, सर झुका के मौला की बारगाह में जान नाम करने की नीयत से सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपकी शिरकत करने का शुक्रिया। मौला आपको जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फरमाए। ये व्हाट्सएप नंबर आपकी खिदमत में है। इस व्हाट्सएप नंबर को आप जल्दी से 14 मोमिनीन को और भी शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी मौला की बारगाह में तवस्सुल के लिए इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मुबारकबादी पेश कर सकें और करबलाए मौला आने की दुआ कर सकें। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत मैं रखें। चाहूँगा अगर 1 मिनट है तो मेरा बेटा मौला हुसैन की आमद की थोड़ा पढ़ना चाह रहा है। जी जी, बेटे को लाइए, सलाम पेश कीजिए। बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरबियत है बच्चे की। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, लाएं बच्चे को, सलाम पेश करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। क्या नाम है बेटा आपका? पीर मौला मदद। मेरा नाम मोहम्मद तकी है। मोहम्मद तकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। बेटा करबला की तरफ रुख कर लें, सीने पे हाथ रख के अपनी जवानी मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम करने की नीयत से सर झुका के सलाम पेश करो बेटा।
اللهم صل على हाँ बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। अभी ये करें शुरू, अगर है जगह तो। आप कुछ मनकबत पढ़ना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी। चले एक शेर पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, एक शेर। चले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्योंकि पीछे कॉलर्स हैं। बिस्मिल्लाह। ऐसा बादशाह हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। ऐसा बादशाह हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन के अंजुमा का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। ऐसा बादशाह हुसैन है। बुलंदर सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपको सलामत रखे। बेटा मेरा प्रोग्राम है ये करबला है, उसमें नूहा खां, मनकबत खां, शुअरा अहले बैत अलैहिस्सलाम शरीक होते हैं। उसमें इंशाल्लाह आपको दावत देंगे तो आप उसमें शरीक हो सकते हैं और इंशाल्लाह आप मौला की बारगाह में खुलकर वहाँ पर हदिया पेश कर सकेंगे। मौला आपको सलामत रखे। आपने तवस्सुल किया, मौला आपने बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सलामत रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। मौला आपको सलामत रखें, आबाद रहें, सदा शाद रहें, खुश रहें। और दोस्तान को भी नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें और मौला को सलाम पेश कर सकें। सलामत रहें, आबाद रहें। मौला का तवस्सुल हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। यही तवस्सुल करने के लिए जनाबे फुतरुस तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ जो लाए तो परों को मस किया, वो जले हुए पर जो मस किए तो पहले से कई गुना ताकतवर पर अता हो गए। अब मैं यूँ कह दूँ तो आसान हो जाएगा। तादाद ज़्यादा हो गई, एक कैफियत है, एक वक्त है, कुदरत ज़्यादा हो गई, पर मिल गए। अब ये थे जनाबे फुतरुस। इसी तरीके से काफ़ी सारे और फरिश्तों का भी मिलता है, आसमानी मखलूक़ों का मिलता है जिन्होंने आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल किया और उनका तवस्सुल कबूल हुआ। आज के दौर में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए पर आप आकर देखें, कई मरीज़ों को बांधा जाता है और मौला से शिफा तलब की जाती है और उन्हें शिफा मिलती भी है। बहरहाल हदीसों पे हम पहुँचे थे तो हदीसों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर ज़माना हदीस, जो अरबी की अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं है उसे भी शायद याद हो ये हदीस, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। दूसरे तरीके से भी हम पढ़ते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। बहरहाल अरबी ज़बान में अलिफ लाम का जो इस्तेमाल होता है ना, काफ़ी वजहों से होता है। अलिफ मौसूला भी होता है, माहूद ज़हनी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और अलिफ लाम को इस्तेमाल किया जाता है मासूम किसी नाम के ऊपर, उसे नाम नहीं किसी नकरा को मारफा बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस्म के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो एक ज़ीनत के लिए तो हो सकता है, कहीं कहीं पे ज़ीनत के लिए भी अलिफ लाम को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अमूमन नाम के ऊपर अलिफ लाम इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि मारफा को मारफा करने का क्या मकसद हो सकता है। लिहाजा बहरहाल काफ़ी जगहों पर अलिफ लाम इस्तेमाल हो जाता है। मिनल मदीना, मदीना नाम है, इसके ऊपर भी तो इस्तेमाल हो गया अलिफ लाम। बहरहाल ये अरबों की मर्ज़ी है जहाँ पर इस्तेमाल कर दें, लेकिन बात दरअसल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ ये हदीस चाहे अगर कहें अरबों के लहजे में पढ़ी गई, चाहे कहें इश्तबाहन पढ़ी गई, चाहे कहें कि बिल्कुल ठीक यही थी, लेकिन मफ़हूम सबका एक ही है और सबको याद है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। किसने कहा?
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, हुसैन मिन्नी, मुझसे है, व अना, और मैं हुसैन से हूँ, मिनल हुसैन, मिन हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हूँ। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसलिए किस लिए? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वक़ार बयान फरमा रहे हैं। और काफ़ी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में उठाकर लोगों को दिखाया, अय्युहन्नास हाज़ा हुसैनुन फारिफू हो, ए लोगो ये हुसैन है, इसे जान लो। सबको पता था, जिन्हें दिखा रहे हैं ना, मदीने में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना जानता हो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ना जानता हो। फरमा रहे हैं, अय्युहन्नास हाज़ा हुसैनुन फारिफू हो, ए लोगो ये हुसैन हैं, इन्हें जान लो, इन्हें जान लो। अब मकसद क्या है? लोगों को बार बार कहने का मकसद ये है, मोहब्बत को लोगों के दिलों में रासिख फरमाना चाहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहीं लोग भूल ना जाएं, इसलिए फरमाना चाहते हैं। लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वक़ार बताना चाहते हैं, इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बुलंदी मर्तबत बताना चाहते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये मौला का रोज़ा। यकीन जानिए कि जी चाहता है कुर्बान हो जाए इस रोज़े के ऊपर देखकर, दिल ठंडा हो जाता है इस रोज़े को देखकर। और यकीनन जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो देख रहे हैं, तो उनकी कैफियत मैं महसूस कर सकता हूँ कि जब तक नहीं देखा था, नूहों के अंदर, नूहों के अल्फाजों में, मनकबतों के अल्फाजों में हमने मौला की ज़री को तलाश किया है। आँखों से देखने को मिल जाए तो न जाने क्या हालत हो जाती है हमारी। इसलिए यहाँ पर आकर आने वाला सब कुछ भूल जाता है, हर चीज़ भूल जाता है। सैयदा ज़किया बुखारी साहिबा गुजरावाला से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सलामत रहें। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की पहले से स्पॉन्सर हैं क्या? जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हमारी ख्वाहिश होगी इस व्हाट्सएप नंबर को और 14 मोमिनीन को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और मौला से तवस्सुल कर सकें। जी जी ज़रूर इंशाअल्लाह। सलामत रहें। इस वक्त आपकी आवाज़ शब जुमा, शब आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला की बारगाह में करबला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए। दिल पर हाथ रख के, धड़कनों को मौला के नाम करने की नीयत से सर झुका के अर्ज़ अकीदत और सलाम पेश कीजिए मौला को। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला अली हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम मौला गाज़ी अब्बास अलमदार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला जी इज़्न ज़ियारत व इश्तिमालफत के साथ मैं मौला जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ आपकी विलादत की, मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जी की विलादत की, बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा जी की विलादत की, आपको आपके शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम जी की विलादत की मुबारकबाद पेश करती हूँ मौला जी। मौला जी आपको शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करती हूँ मौला जी। कबूल फरमाइए अपनी बारगाह में मौला जी, मुझे ज़ियारत बख्शते मार्फत के साथ या मौला जी प्लीज़ इस ज़ियारत बख्शते मार्फत के साथ मुझे प्लीज़ दुआ के इल्तिमास। मौला सलामत रखें, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, मौला आपको सेहत दें, सुख दें, सलामती दें, जल्द करबलाए मौला आने का शरफ़ अता फरमाएं। आपके घर में जो मुश्किलात हैं मौला हल फरमाएं और आपकी जो दुआएं हैं मौला कबूल फरमाएं, जो बीमारियां हैं दूर फरमाएं, जो कर्ज़े हैं अदा फरमाएं, जो आपके अजीज़ों की दुआएं आपके ज़िम्मे हैं कबूल फरमाएं, और जो शरीक हैं आपके साथ तवस्सुल में मौला उनकी भी दुआएं कबूल फरमाएं। जो हमें कॉल कर सके उनकी भी मौला दुआएं कबूल फरमाएं, जो नहीं कर सके कॉल उनकी भी दुआएं मौला कबूल फरमाएं। हुज्जत खुदा का दीदार करने की सादत अता फरमाएं आपको। आपकी कॉल करने का शुक्रिया। सलामत रहें, मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाएं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।
साइम तालपुर से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली मदद। आपका नाम साइम है? हाँ, मेरा नाम साइन है। साइन तालपुर। साइन तालपुर से। मौला कबूल फरमाए। 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम में आपकी कॉल मिली हुई है। क्या आप पहले से इमाम हुसैन मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर हैं? नहीं। तो क्या चाहेंगे कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मिशन में हिस्सेदार बने? जी हाँ। चलें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इस स्पॉन्सरशिप को 14 मासूमों में से किसी एक नाम को ले दीजिए। किसके नाम करना चाहेंगे? मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मौला आपको सलामत रखे। बेटा, इस नंबर को 14 मोमिनीन को और शेयर करेंगे ताकि मौला की बारगाह में वो भी कॉल कर सकें और मोहब्बत का इजहार कर सकें। वक्त कलील है, करबला की तरफ रुख करें, खड़े हो जाएं, सीने पर हाथ रख के झुक कर मौला को सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुसैन वाला औलादुल हुसैन वाला सहाबुल हुसैन अलैहिस्सलाम। हम सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली। मौला आपको सलामत रखें, आपकी मुश्किलात हल फरमाएं। जब जी चाहे बेटा आप कॉल कर सकते हैं। 2 घंटे का प्रोग्राम है। पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12 के दौरान है। 2 घंटे का प्रोग्राम है। 15 शाबान की रात तक ये प्रोग्राम चलेगा। आप रोज़ाना कॉल कर सकते हैं, मौला को सलाम पेश कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं, तवस्सुल कर सकते हैं। और दोस्तों को भी नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी शरीक हों। अगर वो तवस्सुल करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी और मौला आपकी भी मुश्किलात को हल फरमाएंगे। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें। मौला आपके घर बार में बरकत अता फरमाए। मौला इमाम हुसैन से मेरे औलाद के लिए दुआ कीजिएगा, मुझे साहिब औलाद करे 14 मासूमिन के सदके में। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जनाब अली असगर का सदका आज की शब में आपने औलाद तलब की। यकीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की नेक शब है, खुशी की शब है, शब जुम्मा है। मैं दुआ करता हूँ आपके हक़ में मौला आपको औलाद अता फ़रमाएँ और जल्द आप औलाद की खुशी का शुक्राने की ज़ियारत करने के लिए करबला तशरीफ़ लेकर आएँ। मौला आपकी परेशानियाँ हल फरमाएँ। मौला आप पर रहमत। बीबी फातिमा ज़हरा को मौला हुसैन का वास्ता लेकर तुम मेरी औलाद के लिए दुआ करें भाई। आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में आपने वास्ता दिया, मैं भी आमीन कहता हूँ। जो सुन रहे हैं, जो बे औलाद है, मैं उन सब से भी तकादा करूँगा, इल्तिमास करूँगा, वो भी आमीन कहें। अपने लिए भी औरों के लिए भी दुआ मांगें। कोई झोली आज की शब का सदका खाली ना रहे। मौला आप सबको औलादें अता फ़रमाएँ। जो औलाद नरीना से महरूम है मौला उनकी महरूमी दूर फरमाएँ। मौला आप सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाएँ। कॉल करने का आपका शुक्रिया। नेक्स्ट भी आप कॉल कर सकते हैं। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है। आखिरी वक्त यकीनन बड़ा सख्त हुआ करता है, लिहाजा मौला की बारगाह में मौजूद हैं और आप सबके लिए दुआ गो हैं। जिस चीज़ की कॉल आ सकी या जो बाद में कॉल्स करेंगे उन सब के लिए दुआ गो हूँ। प्रोग्राम का टाइम रात 8 बजे से 10 बजे इराकी टाइम, पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12 है। इंडियन टाइम टाइम 10:30 से 12:30 है इंडियन टाइम। तो लिहाजा आप इसमें कॉल कर सकते हैं। कोशिश करें वक्त से कॉल करें ताकि आपकी कॉल प्रोग्राम में हो सके। प्रोग्राम का आखिरी वक्त। आइए हुज्जत खुदा को मुबारकी की नीयत से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ मांगते हैं। आइए अपने सब दुआओं को पेश करते हैं ईदी के तौर पे। हुज्जत खुदा का दीदार। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फ़रज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर
میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔